میرے پاس تیرا بھائی آیا۔ پھر آگے انہوں نے بدل کی چار قسم بیان کی: بدل الکل، بدل البعاض، بدل الاجتماع اور بدل الغلط۔ بدل کی چار قسمیں ہیں بدل کی چار قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتماع اور بدل الغلط۔ تو یہ کل، بعض، استعمال اور غلط، یہ لفظ ہی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ان کا یہی، یعنی کل، بعض، استعمال اور غلط ہی، یہ الفاظ ہی دلالت کر رہے ہیں کہ ان کی تعریف ڈیفینیشن کیا بنے گی کہ بدل اور مبدل میں کا مصداق ایک ہو، یعنی بدل اور مبدل میں دونوں کا مصداق ایک ہی ہو۔ مثال کے طور پر، جا انی زید اخو کا، میرے پاس زید یعنی تیرا بھائی آیا۔ زید آیا میرے پاس بھائی، زید کون ہے؟ وہ بھائی تیرا بھائی ہے۔ میرے پاس تیرا زید بھی مراد ہے اور اخو کا بھی مراد ہے۔ قراءۃ الکتاب اور روضۃ الادب، میں نے جو ہے نا کتاب پڑھی، یعنی روضۃ الادب، روضۃ الادب کی میں نے کتاب پڑھی۔ تو یہاں کتاب بھی بدل ہے، مبدل میں ہے، اور روضۃ الادب یہ بدل ہے۔ تو یہاں دونوں مقصود ہیں، کتاب بھی مقصود ہے اور روضۃ الادب بھی مقصود ہے۔ کیوں؟ وہ جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ روضۃ الادب کی کتاب پڑھ رہا ہے، جیسے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں نہ میر کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جیسے قرأت الکتابہ، میں کتاب پڑھ رہا، میں نے کتاب پڑھی، یعنی نہ میرا، کہ میں نے نہ میر کی کتاب کو پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے کل، اس سے بدل بھی مراد ہوتا ہے اور مبدل منہ دونوں مراد ہوتے ہیں۔ اور بدل الباز، بدل اور مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو، یعنی اس کا کچھ حصہ ہو، زیادہ سارا مراد نہ لیا گیا ہو، کچھ مراد لیا گیا ہو۔ جیسے ضریبہ زید راسہ، کہ زید کو مارا گیا یعنی اس کے سر کو، زید کو سب کو مارا گیا، زید کو یعنی اس کے سر کو، صرف یعنی جو پورا زید تھا نا، پورے زید کے پورے جسم، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جو مارا گیا ہے، صرف ایک جز کو، سر کو مارا گیا ہے۔ یہ مراد ہوتی ہے جو بعض کی، کہ بدل مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو، یعنی ضریبہ زید راسہ، کہ زید کو مارا گیا یعنی اس کے سر کو، تمام سارے زید کو نہیں مارا گیا بلکہ اس کے سر کو مارا گیا ہے۔ اور بدل الاجتمال، بدل کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہو، سولبہ زید صوبہ، سولی کا امر مالہ، کہ بدل اور مبدل منہ کے ساتھ آپس میں تعلق ہو۔ مثال کے طور پر، زید کہ اس کا کپڑا چھینا گیا، سلب کیا گیا، یا سوری کا امر مالہ، اور امر یعنی اس کے مال کو چوری کیا گیا۔ امر کو تو چوری نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے امر یعنی اس کے مال کو چوری کیا گیا۔ تو سلیبہ زید، زید کا کپڑا جو ہے نا چھینا گیا، زید کو چھینا گیا یعنی زید کے کپڑے کو سلیب کا ترجمہ بھی دیکھ لینا، میرا خیال اس کا ترجمہ جو ہے نا، میں چھیننا ہے غالباً، اس کے ترجمے کو دیکھ لینا۔ اچھا اچھا، اور بدل الغلط، جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، جیسے اشتری تو فرسن، کہ میں نے گھوڑا خریدا، نہیں نہیں میں نے گدھا خریدا۔ جاءنی جعفر، جاءنی زید جعفر، میرے پاس زید، نہیں نہیں جعفر آیا۔ میرے پاس آیا، میرے پاس زید، نہیں نہیں جعفر آیا۔ تو بھئی یہ آسان ہے، اس کے اندر اب آپ حضرات دیکھ لیں، کوئی مشکل ہو تو جی، میرا خیال اس میں اب کوئی سر اس میں مشکل نہیں، آسان ہے۔ کل کل اور من میں فرق تھوڑا سا بتائیے گا، کل اور من۔ کل میں، ہاں کل کل میں تو کہتے پورا جیسے کسی کی طرف اشارہ ہو، لیکن من ہو کسی چیز کی طرف، اس کے میں نے اچھا کہاں پر ہے جی؟ ہاں اچھا سر، میں پھر سمجھا کیوں آپ نے ذکر فرما رہے تھے اس میں۔ جی، اچھا صحیح، ٹھیک ہے، جی بہت صحیح، بہت آسان، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے یہ سبق۔ جی صحیح، جی صحیح، جی صحیح۔ آپ آپ اس کو نظام الدین صاحب پڑھیں شروع سے، بدل الکل سے اور بدل الباس، آپ سارے پڑھیں چارے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پڑھیں آپ اس کو۔ جی، بدل کل جو ہے، بدل اور مبدل من کا مصداق ایک ہو، جیسے جانی زیدن اخوک، قرأت الکتاب، قرأت الکتاب روضۃ الادب۔ پھر بدل الباس، بدل مبدل من کے مصداق کا جز ہو، جیسے
ज़ुरब ज़ैदुन रअसहु बदलुल समझाते इस्तेमाल। समझाते भी जाए ना साथ साथ। जी 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 अगर पहले पहले ये है कि अगर बदल और मुबदल मैंने उसका मिस्ताक से क्या मतलब है हज़रत? मुराद मिश्ता मुराद कैसे इनसे दोनों ही मुराद लिए जाएं। जी सही है। तो बदल कुल के अंदर बदल और मुबदल मैंने उनके मिसल हो, जैसे जानी जैद अखूक है कि आया मेरे पास जैद, जैद तुम्हारा भाई। मिसदाक का आम मतलब में आप ये कह लें कि मिसदाक से मुराद होती है मुराद मुराद, यानी मेरी ये मुराद है। यानी बदल और मुबदल मैंने दोनों यानी एक ही में है। दोनों का मतलब एक ही बन रहा है, दोनों ही मुराद है यहाँ पे। यानी बदल और जी मुबदल सही है। मैंने यहाँ पे मुराद है। जी ये मतलब है मिसदाक और का। जी जी सही है। और बदल और बाज के अंदर कि उसकी किसी एक चीज की तरफ, जैसे बदल और मुबदल मैंने कि मिस्ताक का जुज हो, यानी उसका उससे ताल्लुक हो लेकिन उसका जुज हो उस बंदे से, तो उसको जो है वो बदल बाज कहेंगे। जैसे ज़ुरिब ज़ैदुन रासू के मैं ज़ुरिब के ज़ैदुन रासू, जैद उसके सर को मारा, उसने जैद के सर को मारा। हाँ जी तो उसके सर का क्योंकि जिक्र आया तो इसलिए उसको बदलुल बाज कहेंगे। जबकि बदलुल इस्तेमाल जो है बदल का मुबदल मैंने के साथ ताल्लुक हो, जैसे सुलभ ज़ैद जी अमर के माल को चोरी किया, जी यानी उसके साथ ताल्लुक हो। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हाँ है। जी ये जुज का मतलब है उसके किसी जिस्म का हिस्सा या किसी उससे कोई चीज़ ताल्लुक़ रखने, उससे उसके 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 जो भी वजूद है उसके साथ ताल्लुक़ हो। लेकिन जो आम बाकी चीज़ों के साथ ताल्लुक़ हो तो उसको फिर तीसरी कैटेगरी यानी बदलुल इस्तेमाल में इनको शामिल करेंगे। जी बदल गलत। जी अच्छा, बदलुल गलत जो गलती के बाद सही लफ्ज़ के साथ जिक्र किया गया हो, जैसे इश्तरई तो फरसन हिमारन, मैंने खरीदा घोड़ा बल्कि नहीं बल्कि खोता यानी गधा। मैंने घोड़ा खरीदा नहीं नहीं गधा, यानी हम करेक्शन करें अपने अल्फाज की तो उसको उसके लिए तीसरा बलदुल गलत जो है इस्तेमाल होगा। ऐसी है सर। आप ही खोता कहते हैं। हाँ? जी हजरत गधा, गधा। नहीं वैसे आपकी जुबान में खोता कहते हैं। अ, बस ऐसा हम तो बातचीत में बस ज्यादातर के उर्दू और पंजाबी के लोगों के साथ ही वास्ता पड़ा है, तो इसलिए मेरी जबान पर भी वही वाला एक्सेंट जो है ना चढ़ गया। हैं? आप बेसिकली पंजाबी हैं। नहीं सर जान लेता हूँ क्योंकि लोगों के साथ वास्ता पड़ा हुआ, तो इसलिए चलो ज्यादातर अरसा बस उर्दू और पंजाबी में बातचीत हुई, तो इसलिए। हाँ जी जी माशाल्लाह। आगे पढ़े भी उस्मान अली। मुझे ये जो बदल और मुबदल मिन्हु है इसकी समझ नहीं आई थी। हाँ मैं समझा देता हूँ आपको। बदल और जी मुबदल में अच्छा, हमने जो ताबे पढ़ा था ना, उन ताबे के अंदर मकसूद कभी वो था कभी वो नहीं, कभी वो मकसूद होता था कभी वो नहीं होता था। लेकिन जब बदल ऐसा ताबे है इससे यही मकसूद होगा। मिसाल के तौर पर जा अनी जईदुन अखू का, तो यहाँ पर मेरे पास जयाद यानी तेरा बाप आया, तो मकसूद तो आला बताना था कि भाई जो है मेरे पास तेरा भाई आया है। समझ आ रही बात। बदल से मुराद बदल की जात ही होती है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं होती। मिसाल के तौर पर जा अनी जईदुन अखू का, तेरा भाई मेरे पास, जैद मेरे पास यानी तेरा भाई आया। तो भाई भाई पहले है या जैद पहले है? क्यों बिस्मार? जी हजरत मैं देखने में तो मिसाल से समझा ज्यादा। मैं आपको इसी मिसाल से समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी समझ। मिसाल के तौर पर मैं
आप यहाँ نہیں حضرت، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مبدل منہ اور بدل میں تھوڑا سا بس نا آپ کی اس کی نہ کیجیے گا، صرف مبدل منہ کس کو کہتے ہیں اور بدل کس کو کہتے ہیں بس یہ بتا دیں۔ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نا اوپر، اس تابع کو کہتے ہیں جو نسبت سے خود ہی مقصود ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہاں؟ کیا اور مبدل منہ وہ تو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن، اچھا یہ نیچے۔ مطبوع کو میں آپ کے سادہ بتاتا ہوں، مطبوع کو کہتے ہیں مبدل منہ اور تابع کو کہتے ہیں بدل، جو ہم پیچھے مطبوع پڑھ کے بس آئے ہیں نا، ٹھیک، ہاں جی جی، اس کو مبدل منہ اور جو تابع پیچھے پڑا اس کو بدل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہو گئی، اصل میں نا جی پچھلا سبق میرا مس ہو گیا تھا اس لیے پھر وہ ہاں سمجھ نہیں آئی، جزاک اللہ خیر جی۔ جی پیچھے چلے، چلے آگے، آگے اسی پہ پڑھے آگے، عطف بحرف، کون پڑھے گا ساتھی؟ عثمان دریسا پڑھیں آپ۔ جی سر جی۔ عطف بحرف، ہاں وہ تابع جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو۔ مطبوع ہاں کو معطوف، معطوف الیہ، علیہ، ہاں اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، جیسے ہاں جاء زید و عمر، عمر، امر، ہاں عمر، تو جیسے ہاں جاء کی نسبت زیدن کی طرف ہے ایسے ہی حرف عطف، عطف کے واسطے سے امرن کی طرف ہے، عطف، عطف۔ حرف عطف کے واسطے سے، اس کو سننا ہے، عطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو۔ مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، جیسے جاء زید و عمر، میرے جاء زید و عمر، زید اور عمر آیا، زید اور عمر آئے، تو جان لے کہ جیسے جا کی نسبت زید کی طرف ہے ایسے حرف عطف کے واسطے سے امرن کی طرف بھی جا کی نسبت ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر یہاں جو ہے نا عطف بحرف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ واؤ جو ہے یہاں پر جو ہے نا واؤ درمیان میں واؤ ہے، اس کو کہتے ہیں عطف بحرف۔ جو جا زید و عمر میں جو واؤ درمیان میں آیا نا، زید اور واؤ کے، زید اور عمر، عطف عطف، ٹھیک ہے؟ جی سمجھ سر آ رہی جی۔ ہے میری بات؟ جو زید اور عمر کے درمیان واؤ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں حرف عطف۔ اب دیکھیں، جو زید ہے اس کو، جو واؤ سے پہلے ہے وہ کون ہے؟ زید ہے، اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ، اور اس کو مطبوع بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور جو واؤ کے بعد ہے اس کو ہم کہیں گے معطوف، اس کو ہم تابع بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تابع یا تابع کہہ لیں یا معطوف کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور جو واؤ سے پہلے ہے وہ مطبوع ہے، وہ معطوف علیہ ہے، اور جو واؤ کے بعد ہے وہ تابع ہے، وہ معطوف ہے، ٹھیک ہے؟ جاء فعل، زید معطوف علیہ، واؤ حرف عاطفہ، اور امر معطوف، معطوف علیہ کے ساتھ مل کے جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور ترجمہ یہ ہوا کہ امر اور زید اور عمر آئے، تو جیسے جا کی نسبت زید کی طرف ہے ایسے ہی حرف عطف کے واسطے سے عمر کی طرف بھی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ضربا زید و عمر، زید اور عمر نے مارا، فعلا زید و عمر، زید اور عمر نے کیا، فعلا احمد و انصر، احمد اور انصر نے کیا، فعلا عثمان و اشرف، عثمان اور اشرف نے کیا۔ آپ ایسے بڑی مثالیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ درمیان میں آپ سمجھیں کہ واؤ حرف عطفہ ہے، اس سے پہلے جو واؤ سے پہلے آئے گا اسم اس کو ہم معطوف علیہ کہیں گے، اور واؤ کے بعد جو اسم آئے گا اس کو معطوف کہیں گے۔ جی اب اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ سر یہ صرف واو ہی ہوتا ہے حرف عطف؟ بس عطف، ہاں واؤ، فی الحال تو واؤ ہی آپ پڑھیں، اور بھی آئیں گے انشاءاللہ حروف عطفہ۔ اچھا سر جی ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھوں گا۔ وہ ہاں تابع لیکن واؤ جو حرف عطف کے میرے بعد آئے ہاں اور جی جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو، مت علیہ، اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، جی جیسے جاء زید و امر، تو ہاں جیسے جاء کی نسبت زیدن کی طرف ہے ایسے ہی حرف عطف کے واسطے سے امرن کی طرف ہے،
जी उस्ताद, आप जी। सुनाए। जी, मोहम्मद उसामा पढ़े, उसामा साहब पढ़े हैं इसको। बहरफ वो ताबे है जो हरफ अत्फ के बाद आए और जो निस्बत मतबू की तरफ हो हम्म। वही ताबे की तरफ हो। मतबू को मातूफ अलैह और ताबे को मातूफ कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन, तो जैसे जा की हाँ। निस्बत ज़ैदुन की तरफ है, ऐसे ही हरफ अत्फ के वास्ते से अम्रुन की तरफ है। जी, अब्दुलरहमान हैदर साहब पढ़े। जो हर्फ अतफ के बाद आए और जो निस्बत हाँ। मतबू की तरफ हो वही ताबे की तरफ हो। मतबू हाँ। को मातूफ अलई और ताबे को मातूफ कहते हैं। व अम्र, तो जैसे जा की निस्बत जैदुन की तरफ है, ऐसे ही हर्फ अतफ के वास्ते अम्रुन की तरफ है। चलो माशाल्लाह। जी, उस्मानी साहब, उस्मान अली, उस्मान, इन दोनों में से कोई पढ़े साथी, उस्मान अली। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अतफ बहरफ हाँ, वो ताबे है जो हरफ अतफ के बाद आए और जो निस्बत हाँ। मतबू की तरफ हो वही ताबे की तरफ हो। मतबू को मातूफ अलैह और ताबे को मातूफ कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन व अम्रुन, तो जैसे जा की निस्बत ज़ैदुन की तरफ है, ऐसे ही हरफ अतफ के वास्ता से अमरुन की तरफ है। हजरत यानी जैसे जा फेल जैद के लिए है, ऐसे ही अमरुन के लिए है, ये वाव के वास्ता से। यानी फेल तो एक है लेकिन इसके फाइल दो हैं, तो ये वाव की वजह से जो एक फेल है दो फाइल को यानी काफी हो गया। हाँ जी, मिला रहा है बात। उस्मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पे जी, उस्मान साहब। अतफ बेहरफ वो ताबे है जो हरफ अतफ के बाद आए और जो निस्बत मतबू की तरफ हो रही हो ताबिया की तरफ हो, हाँ। और मतबू को मातूफ अलई और ताबिया को मातूफ कहते हैं। जैसे जा जईदुन व उमरुन, तो जैसे जा की निस्बत जईदुन की तरफ है, ऐसे ही हरफ अतफ के वास्ते से अमरुन की तरफ है। जी। इसमें एक जी, सवाल था। ये पूछें जी। जैद और अमर अभी इस सूरत हाल में जानी का ताल्लुक उस दोनों के साथ है, तो हम इनको आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई ऐसा कोई इनके अंदर कोई मकसद नहीं है, नाम ही है दोनों। तो फिर हम इनको ये एक को मकतूब मातूफ अलैह कह रहे हैं और दूसरे को मातूफ, तो अगर आगे पीछे कर दें तब भी वही जगह वही रहेगी। तो फिर हम मातूफ अलैह का जैद को क्यों वो हालत में स्टेटस दे रहे हैं? तो आप अमर को दे ले, ज़ियाद को इस तरफ कर दे। जी तो यही मेरा सवाल है कि मातूफ इले तो तब है ना कि जब उसके साथ उनका खास ताल्लुक किसी, जैसे हम कहें ना कि ए के साथ बी का ताल्लुक जुड़ रहा था, तो हमने से ए को मातूफ इले कह दिया और बी उसके साथ मातूफ हो गया। अब ये यहाँ पे दोनों, तो इवन एक दूसरे हाँ, दोनों सेम है। आप अमर को जी ज़ियाद की जगह पर रखते हैं, ज़ियाद को लगा। मातूफ। वो तो हरफ आतफ देखना, मेरी बात सुने। उसमें ये होता जी है कि मातूफ जो है ना, ये उन्होंने जो एक इस्तिलाह बनाई है कि जो दरमियान में वाव लेकर आगे, तो उन्होंने कहा कि दो इसम हैं, दोनों इसमों को हमने वह फाइल बनाना है। फाइल तो बनाएंगे और दरमियान में हर्फ क्या लेकर आएंगे, उन्होंने कहा वाव लेकर आएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा वाव ले आएंगे, लेकिन अब हम इनको क्या देंगे? हम ये तो इनको नाम नहीं दे सकते भी एक फाइल नंबर एक और वाव हरफ आतफा और अमर जो है फाइल नंबर दो। समझ आ रही है ना मेरी बात? जी सही है, सही है। और ये वाव जो है, वाव आतफा जानी की तरफ है या जैद की तरफ है? तो ये सिर्फ दरमियान में वास्ता है, दोनों के। जी ये सही, जी जैद और सही है, अमर के दरमियान वास्ता है। इनके दरमियान जी सही। आप फसल भी कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इनके दोनों के दरमियान एक वास्ता है। इन दोनों को उन्होंने मिला के एक कर दिया। लेकिन अगर ये वाव दरमियान में हो तो फिर जैद भी फाइल बन जाएगा और अमर भी ज़ाहिर फाइल बन जाएगा। तो फेल को तो एक फाइल की जरूरत होती है, फेल को दो मफूलों की फेल को देखो फाइल की जरूरत होती है, दो फाइलों की जरूरत तो नहीं होती ना। तो उन्होंने जी कहा सही। कि देखो हम दरमियान में वाव ले आते हैं, तो पहले को हम कहेंगे मातूफ वाला है, दूसरे को मातूफ कहेंगे। उन्होंने इस्तेलाह ही तब्दील कर दी इनकी। ठीक है। जी सही है, तो सही। सारी पहचान के लिए है ना, कि जो वाव से पहले होगा पहचान के वो मातूफ पहचान के फलाई लिए। होगा, और जो बाद में होगा उसको मातूफ कहेंगे। हाँ जी। जी, और कोई सवाल हो भाई
تو میں لنک भेजता हूँ दूसरा, फिर वो आप वो जो सफ़ा है ना, उस पे परसों इसमें मसूल पढ़ा था ना, तो आज जो है वो उसमें मसूल से आगे पढ़ेंगे, इसमें इशारा अच्छा से जी, इसी किताब का? इसी किताब से, बल्कि वो निकाल लें आप एक दफ़ा, तो फिर मैं दोबारा लिंक भेजूंगा ना, तो वो क्लास में फिर वही। ये ऊपर से ना। अस्माई अफ़ाल, जी। जी जी, हाँ अस्माई अफ़ाल वो अस्मा हैं जो फेल के मानों में इस्तेमाल होते हैं। इनकी दो हाँ किस्में हैं, बमनी हाँ अमर हाजिर हाँ ये और उस्ताद जी दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं। हाँ, यही है, पढ़े 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 ठीक बमनी है, इस अमर किताब हाजिर से जैसे पढ़े पढ़े। रवैद, रवैद का मतलब रवैदा, होता है छोड़ दो, हाँ रवैदा छोड़ दो, बल्हा छोड़ दो, हाँ हय्यला मुतवज्जे हो, हाँ हलुम्मा, हलुम्मा आओ, हाँ दूनका, दूनका ले आओ या ले, हाँ, ले, अलैका, जी अलैका लाजिम पकड़ो, हाँ पकड़ो। हम्म, और बमानी माजी, फेल माजी जैसे है ही हाथा, दूर हुआ, शताना जुदा हुआ, हाँ सराना जल्दी की, जी। आगे सराना पढ़ो, जल्दी। आगे भी पढ़ो, और अस्माए 5वें नंबर पे है अस्माए अस्वात, वो अस्मा जिनसे किसी आवाज की नकल मकसूद होती हो, अच्छा, जैसे खांसी की आवाज, जैसे ओह ओह खांसी की आवाज, सरद की आवाज, नखा नखा ऊंट के बैठने की आवाज, गा का कव्वे की आवाज। बस और थोड़ा सा, बस जी थोड़ा जी, ऊपर आए बस। अब इनकी एक एक साथी को मिसाल दे, रवैदा, बलहा, हय हल, इनकी एक एक साथी मिसाल देता जाए, निजामुद्दीन साहब साहब से शुरू हो जाए, तो इनकी एक एक मिसाल देते जाए साथी भी। निजामुद्दीन साहब से शुरू हो जाए। रवैदा छोड़ दो। रुवैदा जैदुन, हाँ, कौन है रवैदा? रवैदा जैदन या जैदन होगा भी? दोनों होगा ना, तो ये तो अस्मा है, अस्मा फेल है जी, फेल के बाद फाइल तो मरफू होगा ना जी। रुवैदा जैदन होगा, हजरत मफऊल भी है ना जी, जैद को छोड़ वही दो। तो मैं कह रहा था। जी हाँ, यही मैं मंसूब बोल है, रहा रुवैदा हूँ। हाँ जैदन जी, जैद को छोड़ दो। जी, निजामुद्दीन साहब, बलहा। अगर बल है अ, अ, बल बल है अमरन, अमरन बलहा अमर अमर, अमर को छोड़ दो, अमर को छोड़ दो, अमर को छोड़ो। छोड़ो। हय हल, हय हल, हय हल, हय हल। हय्या हल हय हल जैदन। अल्लाहि अकबर। माशाल्लाह। हलुम्मा, हलुम्मा, हलुम्मा जैदुन, जैद आओ। ये कुरान मजीद में भी आता है ना, हलुम्मा इलैना वला यअतूनल बअसा इल्ला क़लीला। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूना का, दूना का कोई साथी करे भी, दूना का बताए कोई मिसाल ले दून का कुर्सियुन। आए। दून, कुर्सी ले आओ। अलई का, हजरत ले आओ का मतलब, यानी मतलब टेक नहीं होगा इसका, यानी ले लो, दूना का ले यानी टेक, दून का तुम ले लो। तुम ले यानी लो। दूना ले का है ले किताब, आओ, ये किताब ले लो, तुम ले आओ। हाँ, ये दूना ले का आओ मैंने हजरत। ले, भाई ले लो नहीं, ले तू किताब ले। ले ले। जी जी, वही दूना का मतलब, यानी किताब दूना का हादल किताब, ये किताब ले। हाँ, ले लो। आगे है अलई का, भलाई अलई का का। बिसुन्नती। अलैका माशा, बिसुन्नती। हाँ, अच्छा हजरत, हजरत ये अलैकुम बिसुन्नती, ये भी ठीक है, ये ठीक, ठीक है माशाल्लाह। और हाँ, हाँ, पकड़, खुजहा, खुजहा, हाँ हादल अंतुम की, आएगा जी। हाँ तुम शद्दो कल करना सही है, ठीक है माशाल्लाह। वो तो
ओ भाई अल्लाह के बंदा। नहीं, चलो कोशिश की है ना उस्मानी साहब ने यार। यहाँ पे दो सवाल हैं। जी जी। एक तो ये थे अस्मा अफ़ाल को हम कहते हैं कि फेल के माना में है। तो हाँ, फेल के माना से ये है कि जो कहीं पढ़ा था कि अलामात को कबूल नहीं करते। तो यहाँ पर तो अलामात को कबूल करने से क्या मुराद है और माना से क्या मुराद है। दूसरा हा जो है ये। जी। अच्छा वो कहाँ लिखा हुआ अलामत कबूल नहीं करते? ये जो अस्मा अफ़ाल है, ये हम हाँ, कहते हैं कि अस्मा हैं जो फेल के मानों में इस्तेमाल हो। तो मानने से क्या मतलब, क्या मुराद है। फेल के अंदर फेल का माना पाया जाता है भाई। जैसे रुवैदा है, ये उतरु के माना में है। और बलहा ये भी उतरु के माना में है। हय्या हल जो है ये मुतवज्जो अतवज्जहु के माना में है। हलुमा ये क्या नाम है, अंजिल के माना में है। ये मुराद है इनके अंदर। सर ये अम्र अच्छा हाजिर तो इसमें हुक्म है सारे ना, ऐसे ही सर, हाजिर के हुक्म है। ये नहीं, मैंने माजी उस्ताद जी वाले, पढ़ा था कि जब ना माजी वाले वहां पे भी हैं लिखा और हुआ अमर था हाजिर भी हैं जी जी कि इसमें मासी भी। मैं इसमें बताता हूँ ना अफाल आपको। इन इसमा, इसमें अफाल इन इसम अस्मा को कहते हैं जो लफ्जन इसम और मानन फेल हो, यानी फेल वाला हाँ मैं नहीं देते। जी। ये सही लग तो रहा। हई हाथा शत्ताना व सराना। जैसे सवाल ये है कि आखिर ये छः जो ऊपर जो है छः लफ्ज हैं और नीचे तीन हाँ हैं, क्या हाँ, ये सात। तो क्या यही सिर्फ फेल के माने दे, फेल तो और भी बहुत सारे इससे मिलते जुलते नाम होंगे जिनको जो फेल के माने देते होंगे। हाँ। तो यहाँ पे इन, उन दो इन सात को और अमर हाजिर में तीन का जिक्र किया गया, इन तीन को यहाँ पे लिखा गया। या सिर्फ एक मिसाल दी गई किस तरह के अल्फाज, क्योंकि ये गैर मुतमक्किन है ना, इससे मुशाबे भी बाद में कोई और भी अल्फाज आ सकते हैं। तो हम उन्हें भी इन्हीं इसी इसी हेड के नीचे या कैटेगरी के नीचे ले आएंगे। ऐसे है या नहीं है ऐसे। उन्जुर उन्जुर फी किताबिल कबीरा फी सनतिल आतिया। आप बड़ी किताबों के अंदर इंशाल्लाह पढ़ लोगे। आपके पेट के हाजमे के उन्होंने सिर्फ आपको तारुफ करवाया है कि अस्मा जी हैं सही। ऐसे। ये सारी वो जी क्योंकि लिखा सही। हुआ है ना जैसे, तो इसका मतलब है और भी मिसालें होंगी इसकी ना। ये तो चंद मिसालें नहीं। तो सर जी इसमें ये जैसे अस्मा है तो अस्मा की जैसे कुछ अलामात हैं, उसमें से इसमें कौन ठीक है सी फिर। अलामत है संभली। आप लिंक भेजा या बस काफी है? उस्ताद जी 3 मिनट है अभी वैसे। नहीं वो तो ये बात उस्ताद सही जी है। हाँ इधर उन्होंने दिए हुए ना दो जैसा इसमें लिखा हुआ है जी कि हाँ। दो किस्में हैं। ये मेरे पास एक किताब है उसमें लिखा हुआ है जी, इन इसमा को कहते हैं जो लफ्जन इसम और मानो फेल हूँ, यानी फेल वाला मैं नहीं देते हूँ, और ये तीन किस्म पर हैं। वो उसमा जो असल अमरे हाजिर के मैं नहीं देते हूँ, वो उसमा जो फेल माजी के मैं नहीं देते हूँ, और वो उसमा जो फेल मुजाहरा के मैं नहीं देते हूँ। मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो किताबें हैं ना, जैसे आप फरमा रहे हैं कि मेरे पास जो किताब है इसमें तीन तरह के। तो हर बंदे ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें शामिल करने की, ताकि ना मेरी किताब दूसरी किताबों से मुनफरद लगे। ठीक है। मुनफरद लगे, तो ठीक हो गया। इब्तदाई जो नाहमिर की किताब है ना, उसके अंदर दो ही हैं। इब्तदान किताब जो है उसके दो। फिर आप जैसे बड़ी आप किसकी शरह में तामल ये नाहमिर पढ़ोगे, उसमें फिर एक बातें खुलती चली जाएंगी आस्ता आस्ता। सही है। जी सर। हाँ हाँ। अच्छा हजरत, एक और चीज यहाँ पे इसमें इशारा में हमने जा जी वगैरह पढ़ा, तो यहाँ पे जो हा का जिक्र है ये वही हा है जो उसके साथ मिलके हाजा बना है या कोई अलग है। नहीं नहीं, ये और हाँ है, ये अलग से आएगी। अच्छा वो हाथ सही है। तंबी वाली वो हाथ तंबी वाली है। जी सही। जी। अच्छा, जैसे हे हाथा यौमुल ईदी होगा या यौमुल ईदी होगा। आई हादा यौमा का यौमुल, क्योंकि ये लाजिम के माने में, ये तीनों फेल लाजिम के माने में है, इनका मफूल नहीं आएगा। ठीक है। हजरत हयात लिमा यौम तो क्यों हो गया। आदून ऐसे। भाई ये जो ना फेल माजी बमाना फेल माजी, जैसे ये हई हाथ शत्तान और सरान, ये तीनों जो फेल है ना, ये फेल लाजिम के माना में आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये मुताद्दी के माना में नहीं आ रहे। इनके बाद जो भी इसम आएगा वो मरफू होगा। इसकी आयत है उस्ताद हयात जी लिमा तो आखिरी मिनट आदून चल से। रहा है सर जी। जी। आखिरी मिनट है उस्ताद जी। अच्छा फिर दुआ कर लें। उसामा भाई कौन सी अलामत पूछ। लिंक भेजने की तो जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह है कह रहा हूँ काफी हो उस्ताद जी, जाएगा।
اور हाँ सर जी भाई, ये इनमें इसमें फेल की alaमत नहीं है, क्योंकि अस्मा है ना, तो इनमें फेल है। की alaमत हो ही नहीं सकते हैं, ये इसमें अफआल इसम है ही की नहीं कौन सी है, इलामत? माना भी नहीं है इनमें। इसम की पूछ रहा हूँ कि इसमें इसम की कौन सी इलामत है? इसम की भी इलामतें हैं ना? ये ये रुवैदुन होगा कि तनवीन, अलिफ ये लाम। ढूंढना है कल आप, उस्ताद उसामा जी, जुम्मे है कल आपको। जी जी उस्मान। जी उस्ताद जी जी। उस्ताद जी, उस्मान दरबार। वो उस्ताद जी मैं वो इसम के अलामात में से निकाल रहा हूँ इसमें। ये आएगी ना उस्ताद